गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन। वी हैव टू नो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फर्मेंटेशन, definition of fermentation and requirement of fermentation techniques, and there are some products. So here we discuss first history. The term fermentation derived from the Latin word that is a fermenter. Fermenter means it is a fermentation. Fermentation is an ancient process dating back thousands of years. That means started from the bread, then wine, beer, cheese were made by the fermentation process. Egyptian found that the some dough leading to be higher and lighter side. They had Romans discovered that yeast production and their grape juice converted into the wine by the fermentation process. Some ancient also produced the beer by soaking the barley in a water, probably by the for the bread baking process. The Chinese used microorganisms in the production of yogurt, cheese, wine, vinegar, and different type of sauces. Cheese was made by the storing milk in animal skin or bladder made from the animal stomach. The bacterial enzyme present in this container would cause separation of casein, that is a milk product. Milk से उन्होंने casein को अलग किया by the fermentation of milk. Simultaneously, some time they are using fermented rice, vegetable and fruits to produce a fermented product. Then after Louis Pasteur has to be late 19th century understood the process of fermentation and discovered the use of microorganism, proper use of microorganism, and they utilized their knowledge to work in a fermentation process. Then after Anthony von Leeuwenhoek, and that is a Dutch biologist, in 1680 was the first to see the microorganism in a sample of fermenting beer through the microscope. Pasteur, a French chemist, discovered that yeast convert sugar to alcohol and carbon dioxide during the fermentation process. So there is a fermentation is a process by which we are using a microorganism, and that microorganism act on the substrate, utilize their enzymes and convert into their some product. So this fermentation product is usually nowadays used in a alcoholic production of alcoholic beverages, dairy product like cheese and yogurt. So overall the microorganism use their cell and their enzyme assembly for the production of that particular fermented product by using oxygen or without oxygen. So there is a complex substance are broken into the small pieces और small simpler ones. ये सारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो कि होस्ट असेंबली यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर इंटेक्ट इन दैट, और हम एज सच एंजाइम को आइसोलेट नहीं कर सकते, तो हम इन पूरे माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए. कभी कभी फर्मेंटेशन एक्चुअली इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंड दे रिलीज, और यही बाय प्रोडक्ट जो है वो हमारे काम के होते हैं. तो आज की डेट में बहुत सारे एडवांसमेंट माइक्रोवेल बायोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि फर्मेंटेशन में यूज़ की जाती है टू एक्सप्लॉइट द डिफरेंट प्रोडक्ट, और इन प्रोडक्ट्स को हम लार्ज क्वांटिटी में बनाने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, चीज़, योगर्ट, बेवरेजेस जैसे कि बियर और वाइन, कुछ सिंगल सेल प्रोटीन्स होते हैं उनको भी हम आइसोलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फंगई, अलगी, इन सब को यूज़ किया जाता है ये स्मॉल सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए. कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आज की डेट में फर्मेंटेशन मेथड से यूज़ किए जाते हैं. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1929 में डिस्कवर की थी पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक थी जिसका लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने फर्मेंटेशन टेक्निक से किया था बाय यूजिंग ए बैक्टीरिया एंड फंगई. इसके अलावा कुछ केमिकल्स जैसे कि साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमीनो एसिड, कुछ एंजाइम्स और विटामिन्स भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं. कुछ फ्यूल्स हैं जैसे कि इथेनॉल, मिथेनॉल और मीथेन जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं. तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं
वो किस तरीके के होते हैं. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी यूज़ करते हैं दे आर यूनिसेलुलर, मीनिंग दे कंटेन ओनली सिंगल सेल. The cellular microorganisms are broadly classified as a prokaryotic and eukaryotic or maybe aerobic or anaerobic. Prokaryotic मतलब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि जिसमें डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस absent रहती है, दे आर प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, जिसमें DNA आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स. दे कैन बी सब क्लासिफाइड इनटू द अरेकोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया विथ फर्दर सब क्लासिफिकेशन अंडर दोज टाइप. तो अरे बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनारोबिक मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं. कुछ एक्सट्रीम हेलोफाइल्स होते हैं, दैट बैक्टीरिया दैट रिक्वायर्ड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन टू सर्वाइव. कुछ एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स होते हैं, दैट बैक्टीरिया रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड सल्फर. यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे यू बैक्टीरिया आर द टू टाइप्स. देयर इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया जो जिनकी सेल वॉल रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाई ड्यूरिंग द आयोडीन ट्रीटमेंट, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं एग्जांपल है. कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया दैट आर वेरी इन ए सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड डू नॉट रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाई ड्यूरिंग द आयोडीन ट्रीटमेंट. ये होते हैं सारे प्रोकैरियोट्स. जबकि हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो DNA होता है और जो क्रोमोसोम्स होता है दे आर बाउंडेड इन अ बाय मेम्ब्रेन. उनका न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर बाउंड फॉर्म में रहता है. और कुछ एग्जांपल हैं इसके, जैसे फंगई है टू फर्दर क्लासीफाई इनटू द माइक्सोमोकोटा एंड यूमाइकोटा. Myxomocota, these are the fungi that do not contain a cell wall. They are also called as a slime molds. जबकि Eumycota जो होते हैं they are the true fungi. They are important class of fungi that exploited with the commercial uses for fermentation process. इसके एग्जाम्पल है yeast, mushrooms, sponge, fungi, rust and the mildews. इनको हम और माइक्रोऑर्गेनिज्म जो यूज़ किए जाते हैं अदर देन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, हम इनको एरोबिक और एनारोबिक फॉर्म में भी क्लासीफाई कर सकते हैं. एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म वह माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ग्रो करने के लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड देन हैव टू बी मल्टीप्लाई. और इसके थ्रू जब वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं या ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं तो हैव टू जनरेट हीट व्हेन दे कन्वर्ट इनटू द कार्बन एंड नाइट्रोजन. इसी तरीके से एनारोबिक बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाटर या एयर की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं करते, इनको एयर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती. दे आर यूजफुल इन बायोडिग्रेडेशन, ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक केमिकल इनटू द स्मॉलर कंपाउंड्स. और इनको यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए. ये जो बैक्टीरियाज हम पढ़ते हैं जिनको हमने देखा एरोबिक, एनारोबिक, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये किस तरीके का मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म. द टाइप इंक्लूड द ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स, कीमोहेटेरोट्रॉप्स एंड फोटोट्रॉप्स. तो ऑटोट्रॉप्स वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन बी यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एज ए देयर कार्बन सोर्स. हेटेरोट्रॉप्स वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट आर यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एज देयर कार्बन सोर्स. कीमोट्रॉप्स वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केमिकल बॉन्ड्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडेनोसिन एंड ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यूटिलाइज करते हैं. कीमोहेटेरोट्रॉप माइक्रोऑर्गेनिज्म वह माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन सोर्स होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं और उनके केमिकल बॉन्ड्स को कन्वर्ट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी. फोटोट्रॉप्स जो हैं वो एक्चुअली वह माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लाइट को यूज करते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट. इसके अलावा दो तरीके के मेटाबॉलिज्म होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. यू ऑल वेल नोन अबाउट दैट. Anabolism is the synthesis of various metabolic compounds like amino acid, protein, nucleic acid, carbohydrate and lipid. It is an energy consuming process.
whereas a catabolism, this is the breakdown of metabolic pathway to produce the energy. लाइक कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में. तो इस तरीके के जो, और इसमें खासकर कैटाबोलिज्म में एटीपी इन्वॉल्व होती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. दे आर कंज्यूमिंग और रिलीज एनर्जी. आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना ही होगा. दैट फोटोसिंथेसिस इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द फॉर द प्लांट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लांट्स दैट कंटेन्स पिगमेंट क्लोरोफिल which plays a vital role in utilizing sunlight and carbon dioxide and water to produce the energy and the another organic compound required for the plant. Some microorganisms called phototropic microbes contain special structure in their cell, so they are called trilocytes, which contains chlorophyll. They utilize sunlight and carbon dioxide to synthesize organic compound and energy. Bacterial photosynthesis does not require water and does not produce oxygen. तो ये इसके अलावा ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं. बैक्टीरिया किस तरीके के होते हैं, किस तरीके की मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. नाउ अब हम बात करते हैं, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी बायोकेमिस्ट्री में कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है. नाउ अब हम आते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में. नाउ फर्मेंटेशन, जैसा मैंने बताया, एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूटिलाइज करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, और बैक्टीरिया और वायरस जो अपनी एंजाइम होस्ट असेंबली को यूज़ करते हुए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. तो इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देयर इज डिफरेंट नेचर्स ऑफ प्रोसेस होती है डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस. हमें किस तरीके के एंड प्रोडक्ट मिलते हैं जब हम फर्मेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. द फर्स्ट इज माइक्रोबियल सेल. हम माइक्रोबियल सेल यानी कि बैक्टीरिया, ईस्ट या फंगल स्पोर को भी ग्रोथ कराते हैं बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस. कभी कभी माइक्रोबियल एंजाइम एज ए एंड प्रोडक्ट मिलता है फर्मेंटेशन में, क्योंकि हम सबस्ट्रेट जैसे मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम्स और रिनेट्स, रिकॉम्बिनेंट फंगल बैक्टीरियल रिनेट्स फॉर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग. तो ये कुछ माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं, हमें बाय फर्मेंटेशन के थ्रू हम आइसोलेट करते हैं. कुछ माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स हम आइसोलेट करते हैं बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, जैसे कि एल्कोहल या इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, 2,3-ब्यूटेन डायोल, आइसोप्रोपेनॉल. कुछ केमिकल जैसे लैक्टेट, प्रोपियोनेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, फ्यूल्स, मीथेन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम एज ए एंड प्रोडक्ट फर्मेंटेशन से आइसोलेट करते हैं. कभी कभी हम इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स. अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम. देयर इज अल्कोहल फर्मेंटेशन. इससे हमें ये समझ में आएगा कि व्हाट इज द नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ ए नॉर्मल फर्मेंटेशन प्रोसेस. तो अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए वेरियस बैक्टीरिया और ईस्ट जो है वो शुगर को मिथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, और उनके पास डिफरेंट पाथवे होते हैं. तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज देयर डिफरेंट पाथवे टू कन्वर्ट sugar molecule into the ethanol. In the preparation of alcoholic beverages, the several factors have to be considered, such as a flavor, taste, appearance, and safety. This requires special procedure and standards. The commercial procedure of alcoholic beverage each have their own protocols, which gives their product a distinct taste and flavor, and these are often kept confidential. These are the 4 different phases in a bacterial growth. जब हम बात करते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन की, तो उसमें 4 फेजेस होती हैं फर्मेंटेशन की, जिससे हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि कब हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस को प्रॉपरली मैनेज करना है. तो सबसे पहले होती है लैग फेज. एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एडेड टू द न्यूट्रिएंट मीडियम एंड अलाउड टू ग्रो. The number of microorganisms will not increase because they try to adapt to the environment. तो उस फेज को बोलते हैं लैग फेज. यानी कि जब आपने फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट की और उस टाइम पे आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्मेंटेटर के अंदर डाला, और डालने के बाद उस समय उन बैक्टीरिया और वायरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब दे हैव टू रिटेन एंड अडॉप्ट द एनवायरमेंट जो भी आसपास है. एंड आफ्टर दैट जब वो रिटेन कर लेते हैं, नाउ इट कम्स टू द अंडरगो लॉग फेज.
लॉग फेज जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पूरे एनवायरनमेंट के साथ में अडेप्ट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, और वेरी रैपिडली, और इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं कि उनमें उनके सेल के नंबर में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखाई देती है। देन थर्ड फेज आती है स्टेशनरी फेज। इस फेज के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप को ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। दे यूटिलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम एंड स्लोइंग डाउन द स्टॉपिंग सेल ग्रोथ, क्योंकि आपके पास न्यूट्रिएंट उतना ही है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर ग्रोन और मल्टीप्लाई दे यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन है बैक्टीरियल ग्रोथ का वो स्टॉप हो जाता है। एंड देन फाइनली डेथ फेज आती है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स टू एक्सटेंड दैट दे कॉज द डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर ये इस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ होने स्टार्ट होता है, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने साथ में मेटाबोलाइट्स जो है वो टॉक्सिक इन नेचर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इस माइक्रोबियल ग्रोथ में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, पीएच और न्यूट्रिएंट्स, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर मीजोफाइल्स रिक्वायर टेम्परेचर अबाउट 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ। तो मीजोफाइल टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। यदि आप इस टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हैं तो इनकी माइक्रोबियल ग्रोथ अफेक्ट होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थर्मोफाइल्स होते हैं, दे रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर ओवर द 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर में वो सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा तीसरे टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साइक्रोफाइल्स होते हैं, दैट रिक्वायर्ड वेरी लो टेम्परेचर लाइक बिलो द -15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। यदि आप जिस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं उस तरीके का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना जरूरी है उस ग्रोथ मीडियम के लिए। तो या आइदर टेम्परेचर 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ कर रहे हो तो थर्मोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा, या फिर यदि आप साइक्रोफाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको टेम्परेचर -15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट है जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करती है, वो है वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ के लिए वाटर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में बहुत ज़रूरी रहता है, और जिसकी वजह से दैट हैव टू बी कैरी आउट मेटाबॉलिज्म और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है पीएच, क्योंकि हर बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। ये ऑप्टिमम पीएच रेंजिंग फ्रॉम 6.5 to 7.5। जैसे ईस्ट के लिए बात करें तो ये 4 to 5 है, मोल्ड के लिए 4 to 7 है, और ये इसलिए मेंटेन करना जरूरी है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रॉपरली मल्टीप्लाई हो सके, प्रॉपरली अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कैरीड आउट कर सकें। और यदि आप पीएच में चेंजेस लेके आते हैं तो ये मे कॉज द एडवर्स इफेक्ट ऑन द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट यील्ड। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट। ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, विटामिन्स, कुछ मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, जैसे कार्बन सोर्सेस की बात कर रहे हैं, और ये डिफरेंट होती है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग, लेकिन तब भी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ इज 0.1 to 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके माइक्रोबियल ग्रोथ को। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते कहाँ से हैं एक्चुअली? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूबिक्यूटस, यानी कि पाउंड वाटर, सैंड जो है नॉर्मली हमें माइक्रोब्स यहाँ से मिल जाते हैं, पर डिफरेंट डाइवर्सिटी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक सोर्स से भी ऑब्टेन किए जाते हैं, और उनको इंक्यूबेट किया जाता है सुटेबल टेम्परेचर में ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपरली हो जाए। आफ्टर ग्रोथ हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि हम फर्मेंटेशन में स्पेसिफिक रिएक्शन कैरीड आउट कर सकें। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं देयर शुड बी देयर इज हैविंग ए स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये फर्स्ट इज मस्ट बी चीप मीडियम फॉर द ग्रोथ, मतलब वो नॉर्मल मीडियम में भी ग्रोथ कर जाएं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत ना हो न्यूट्रिएंट की, ना तो किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। रिएक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी सुटेबल टू द प्रोसेस यूज्ड। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए रिएक्शंस हम करवाते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये शुड बी सुटेबल होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी स्टेबल
एंड शुड बी अलाउ द जेनेटिक मैनिपुलेशन। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ करवा रहे हैं हम, तो हम जो न्यूट्रिएंट और ग्रोथ मीडिया दे रहे हैं तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली ग्रोथ करना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और जेनेटिकली मटेरियल जो है ना उसका इंटैक्ट होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि वो म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं और डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, तो वो हमारे काम का नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करें तो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो the microorganism should convert the substrate into the product rapidly. Product form should be easily recovered from the cultural medium. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपका बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन से सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और ये प्रोडक्ट जो है वो हम प्रॉपरली आइसोलेट कर सकें। ऐसा नहीं है कि उसमें आधा अधूरा सबस्ट्रेट रह गया हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह गए हो तो हम उस प्रोडक्ट को आइसोलेट नहीं कर पा रहे, तो वो फर्मेंटेशन हमारे काम की नहीं है। और लास्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेफ होना चाहिए। दैट शुड बी हैव ए सर्वाइव प्राइमरीली इन द लैब ओनली। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करने के टाइम पे। नाउ हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से हम आइसोलेट्स की करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। देयर इज अ सेवरल टेक्निक्स कुड बी एम्प्लॉयड फॉर द आइसोलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द माइक्रोबियल कल्चरल ग्रोथ। जब हम माइक्रोब्स को ग्रोथ कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो उनको आइसोलेशन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होती हैं। पहली होती है लिक्विड कल्चर मेथड और दूसरी होती है सॉलिड कल्चर मेथड। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, पर तब भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज ए कैरीड आउट, मतलब लिक्विड कल्चर मेथड जो है वो एक शेकर फ्लास्क के अंदर कैरी की जाती है जिसके अंदर पहले से न्यूट्रिएंट लिक्विड कल्चर मीडिया प्रेजेंट होता है। द इनिशियल इनोक्यूलम कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड उनको उसमें पोर कर दिया जाता है आपके न्यूट्रिएंट लिक्विड कल्चर के अंदर, और उसको ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर पीएच मेंटेन किया जाता है। एंड देन फर्दर उसको सब कल्चर किया जाता है, और सब कल्चर करने के बाद हम जो डिफरेंट कॉलोनीज डेवलप होती हैं कल्चरल मीडियम के अंदर, हम उनको आइसोलेट कर लेते हैं क्योंकि हर न्यूट्रिएंट जो है, हर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेसिफिक कॉलोनीज डेवलप कर लेता है, और इनको अलग करने के बाद हम उनको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट देके मैक्सिमम ग्रोथ करवाते हैं। दैट इज अ लिक्विड कल्चरल मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा है सॉलिड कल्चर मीडिया। इस टेक्निक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सॉलिड प्लेट कल्चर के अंदर ग्रोथ करवाते हैं, जिसके अंदर सॉलिड कल्चर मीडियम के अंदर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे सॉइल को फर्स्ट पॉस्चराइज किया जाता है टू एलिमिनेट द स्पोर एंड देन स्प्रेड ऑन टू द एल्कलाइन अगार मीडियम। एल्कलाइन अगार मीडियम सॉलिड होता है, उसके ऊपर हम इसको स्प्रेड आउट कर देते हैं, जिसके थ्रू ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस अगार को यूटिलाइज करता है और ग्रोथ करता है, और करने के बाद उसमें से एंजाइम्स रिलीज होते हैं क्योंकि दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगार को यूटिलाइज करने के लिए वो एंजाइम को रिलीज करते हैं, और ये एंजाइम को हम आइसोलेट कर लेते हैं फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस और फर्दर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए जहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है। फिर जब ये आइसोलेट कर लिए जाते हैं तो उनको स्क्रीन आउट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। देयर इज अ नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू, सेमटेम के थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड देन हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्दर प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्मेंटेशन में यूज़ कर सकें। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हम फर्दर यूज़ करने के लिए, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टोर करके रख सकते हैं, या ड्राई करके रख सकते हैं, या लाइफलाइज करके रख सकते हैं। यदि हम लिक्विड नाइट्रोजन की बात करें तो लिक्विड नाइट्रोजन इज़ द बेस्ट स्टोरेज कंडीशन, लाइक जिसमें -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड जो है वो वेपर फेज में आ जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कायो प्रोटेक्टिव फॉर्म में स्टोर कर लेती है। ड्राइंग जो है हम नॉर्मली सॉइल से निकलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उससे निकलने वाले एंजाइम्स को स्टोर करके रखते हैं 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इसके अलावा लाइफोलाइजेशन जो कि फ्रीज ड्राइंग मेथड है, हम इसको यूज़ करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको प्रॉपरली फ्रीज ड्राई करने के बाद इनको स्टोर करके रख लेते हैं एम्प्यूल्स के अंदर। नाउ अब बात करते हैं इनॉकुलेशन के प्रिपरेशन की,
कि किस तरीके से जब हम फर्मेंटेशन के लिए प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से इनोकुलम प्रिपेयर करते हैं. Microbial inoculum has to be prepared from the preservation culture so that it can be used for the fermentation process. The aim of inoculum preparation is to select the microorganism with high productivity and to minimize low productivity mutant strain. The process involves the several steps. The first generation culture is prepared from the preservation culture on agar slant with then सब कल्चर टू प्रिपेयर वर्किंग कल्चर. तो सबसे पहले हम एक स्लांट कल्चर बनाते हैं अगार के साथ में और उसके बाद सब कल्चर प्रिपेयर करते हैं जिसको हमें यूज करना है. एट दिस स्टेज माइक्रोइज्म स्टार्ट टू ग्रोइंग एंड देन स्मॉल स्केल फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये वर्किंग कल्चर को यूज किया जाता है एज ए इनोकुलम. बट फॉर द लार्ज स्केल फर्मेंटेशन प्रोसेस इनोकुलम प्रिपरेशन इन्वॉल्व द एडिशनल स्टेप. सेकेंड, स्टेराइल सलाइन वाटर और लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम जिनके अंदर भी ग्लास वेट्स को ऐड किया जाता है अगार स्लांट के अंदर और उसको प्रॉपरली सेक किया जाता है माइक्रोबियल सस्पेंशन बनाने के लिए. ये सस्पेंशन को फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्लैट बेड बॉटल्स के अंदर जिनके अंदर पहले से ही स्टेराइल अगार कल्चर मीडियम प्रेजेंट है. द माइक्रोइज्म आर अलाउड टू ग्रो बाय द इंक्यूबेटिंग द बॉटल्स और फिर इन बॉटल्स को इंक्यूबेट करके रख दिया जाता है फॉर फर्दर यूज. तीसरी स्टेप्स होती है इन माइक्रोबियल सेल को फ्लोट बेड बॉटल से निकाल के शेकर फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और जहां पे पहले से ही स्टेराइल लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम प्रेजेंट होता है और फिर इसको रोटेटरी फ्लास्क के अंदर इंक्यूबेट किया जाता है ताकि इनकी ग्रोथ जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो एक जगह पे ना होके पूरे मीडियम के अंदर हो और जिसके द्वारा वो एरेशन भी दिया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एंड द फोर्थ इज माइक्रोबियल शेल जो कि शेकर फ्लास्क में प्रेजेंट है उसको हम स्मॉल फर्मेंटेटर में ऐड करते हैं जिसके अंदर हम उनको अलाउ ग्रोथ करने देते हैं 1 से 2 दिन के अंदर जिसमें हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म की मिल जाती है और फिर इनके मेटाबोलाइट्स को या इन माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं फाइनली फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए. तो देयर इज अ 5 स्टेप. पहले हम नॉर्मल लिक्विड कल्चर के अंदर ग्रो कराते हैं मतलब इनोक्यूलेट करते हैं फिर वर्किंग सब कल्चर बनाते हैं. वर्किंग सब कल्चर को हम फिर सेकेंड सलाइन वाटर के अंदर या बॉटल के अंदर रखते हैं. फिर उसके बाद हम फ्लैट बेड बॉटल्स के अंदर उनको रोटेटरी सेकर के अंदर रखते हैं फोर्थ में और देन फाइनली हम उनको स्मॉल फर्मेंटेटर में रख के ग्रो कराते हैं लार्ज क्वांटिटी में एंड देन उस पूरे फर्मेंटेटर प्रोडक्ट को हम लार्ज फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज करते हैं. तो ये 5 स्टेप हो गई. अब हम बात करते हैं कल्चरल मीडियम की. एक तो हो गया माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चाहिए फर्मेंटेशन के लिए. अब दूसरा होता है कल्चरल मीडिया. मीडिया क्या होता है एक्चुअली? मीडिया फर्मेंटेशन प्रोसेस में वह होता है जिसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली ग्रोथ किया जाए या सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया जाए ताकि हम प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर सकें. यहाँ पे हम उस मीडियम में सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह कार्बन सोर्सेज देते हैं. सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडीपी भी दे सकते हैं. वाटर प्रोवाइड करते हैं, कार्बन सोर्स देते हैं, नाइट्रोजन सोर्स देते हैं, विटामिन देते हैं और कुछ मिनरल देते हैं. और इन मीडिया को हम प्रॉपरली स्टेराइल करते हैं ताकि अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है उसमें ग्रोथ ना कर सकें, स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ कर सकें. कल्चरल मीडियम को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट डिजायर प्रोडक्ट हमें मिल सके और एक प्रॉपर रेट में मिल सके. और इसके अलावा ये बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है या अनडिजायर्ड बैक्टीरिया हैं वो ग्रोथ ना कर पाए. साथ में कल्चरल मीडिया चीप होना चाहिए एंड नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. शुड बी स्टेबल एंड कॉम्पेटेबल विद द फर्मेंटेशन प्रोसेस. इस चीज का भी ध्यान रखना है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज अ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू बी मेक द फर्मेंटेशन प्रोसेस इन इंटैक्ट यानी कि एसेप्टिक कंडीशन में हमें इसको कैरी आउट करना पड़ता है. द कल्चरल मीडियम विल अफेक्ट द डिजाइन ऑफ फर्मेंटेटर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल hydrocarbon in the media required high oxygen content, so an airlift fermentator should be used. Some natural media ingredients are cheap but they have to be high batch variation. On the other hand, pure ingredients are required for the batch variation in inexpensive. कल्चरल मीडियम में हम जो सोर्सेज यूज करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कार्बन सोर्स एंड नाइट्रोजन सोर्स, वाटर, एंजाइम्स और कुछ विटामिन्स, मिनरल्स. तो कौन कौन से होते हैं इस पे हम अभी आज डिस्कस करते हैं. दैट इज अ कार्बन सोर्स की बात करें तो कार्बन जो है
बहुत रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, या फिर हम मेटाबॉलिज्म जो सबस्ट्रेट यूटिलाइज कर रहे हैं उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट दैट इज अ कार्बन सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन सोर्स हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल सकता है, ऑयल से मिल सकता है, फैट या हाइड्रोकार्बन से भी मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में नॉर्मली मेज, सीरियल्स और पोटेटोज को यूज किया जाता है फॉर द अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। ग्रेन लाइक मेज आर यूजली used for directly in the form of ground powder as a carbohydrate. Malt and beer made from the barley grains contain high concentration of different carbohydrates like starch, sucrose, cellulose and other sugars. Sucrose is obtained from the sugar cane and molasses, and this molasses is one of the cheapest source of carbohydrate. It contains high sugar concentration and other component like nitrogenous substance, vitamin, और इसको एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए और या अमीनो एसिड या ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ऑयल एंड फैट्स जो हैं जैसे कि बहुत प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन सोर्स के लिए। ऑयल्स हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर देता है और इसके अलावा कार्बन सोर्स भी प्रोवाइड करता है, पर इसमें दे ऑल्सो हैव ए एंटी फोमिंग प्रॉपर्टी बट आर जनरली यूज एज एडिटिव रेदर देन एज अ सोल कार्बन सोर्स। तो हम ऑयल को एज एंटी फोमिंग एजेंट यूज करते हैं, ना कि पूरे कार्बन सोर्स के लिए। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे ऑयल के, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, लेंसिड ऑयल और एनिमल फैट, एनिमल वूल फैट जो है उनको हम यूज करते हैं कार्बन सोर्स के लिए। कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे कि C12 और C18 एल्कीन्स या एल्केन्स, जिनको यूज किया जाता है कार्बन सोर्स के लिए। दे आर चीप एक्चुअली, दे आर हैव टू बी मोर कार्बन एंड एनर्जी कंटेंट पर वेट देन द शुगर। They can be used in organic acid, amino acid, antibiotics, enzymes and protein fermentation. इसके अलावा जो नाइट्रोजन सोर्स के बारे में बात करें, अमोनिया एंड अमोनियम साल्ट या फिर यूरिया जो है यूज किया जाता है नाइट्रोजन सोर्स की तरह फर्मेंटेशन प्रोसेस में। अमोनिया ऑल्सो सर्व द पर्पस ऑफ pH कंट्रोल। अदर सब्सटेंस यूज इन नाइट्रोजन सोर्स आर द कॉर्न स्टिप लिक्वर, सोया मील, पीनट मील, कॉटन सीड मील, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, इन सबको हम नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज करते हैं। कुछ मिनरल्स हैं एक्चुअली, बहुत सारे एंजाइम्स बैक्टीरिया के अंदर या इन विट्रो एंजाइम्स जो हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर। ये कुछ एसेंशियल मिनरल्स हैं जिनको मीडिया के अंदर ऐड किया जाता है। इसके अलावा कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक को भी हम ऐड करते हैं इन अ ट्रेस अमाउंट फॉर टू कैरी आउट द प्रॉपर माइक्रोबियल ग्रोथ और एंजाइम एक्टिवेशन। और इनका स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होता है हर एलिमेंट का फॉर इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ना तो इनसे ज़्यादा होना चाहिए ना इनसे कम होना चाहिए, क्योंकि यदि ये ज़्यादा होंगे तो इट मे बी कॉज द टॉक्सिक और इनहिबिट द रिएक्शंस एज वेल। कुछ ग्रोथ ब्रेक फैक्टर्स जो हैं वो भी फर्मेंटेशन या कल्चर मीडिया के अंदर ऐड किए जाते हैं, जैसे कि विटामिन, एमिनो एसिड, कुछ फैटी एसिड्स को भी एज ए ग्रोथ फैक्टर यूज किया जाता है फर्मेंटेशन में, जो कि सेल कंपोनेंट की प्रॉपर रिक्वायरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। कुछ चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। चिलेटिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं? चिलेटिंग एजेंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो अदर देन मिनरल्स हैं दे फॉर्म्स द इनसॉल्युबल मेटल प्रेसिपिटेट, और हम उसको आइसोलेट कर ले ताकि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। Chelating agents are not required in a large scale fermentation process since some of the other ingredient like yeast extract will perform the function of forming complex with the metal ion. एक एग्जांपल है इसका चिलेटिंग एजेंट का, दैट इज सब जानते हैं EDTA। EDTA जो है वो नॉर्मली यूज किया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है टू फॉर्म ए मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। इट रिएक्ट कोवलेंटली विद द मेटल आयन, क्योंकि इसके पास 6 बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए होते हैं मेटल बॉन्ड के साथ में, तो इनको यूज किया जाता है नॉर्मली। कुछ चिलेटिंग एजेंट जैसे साइट्रिक एसिड एंड पायरोफॉस्फेट भी यूज किया जाता है अदर देन आपके EDTA। कुछ बफर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बफर्स भी कल्चर मीडिया के अंदर ऐड किए जाते हैं। दैट बफर आर यूज्ड टू मेंटेन द pH ऑफ द मीडियम। माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रॉपरली मल्टीप्लाई होने के लिए या ग्रोथ करने के लिए हमें एक प्रॉपर ऑप्टिमम pH की जरूरत पड़ती है, और ये pH वेरी करता है
हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन पीएच में भी समटाइम चेंज, और इस चेंज को अवॉइड करने के लिए हम बफर ऐड करते हैं। और ये बफर जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट बफर, अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किए जाते हैं एज ए बफर। कल्चरल मीडियम के अंदर हम एंटी फोमिंग एजेंट भी यूज करते हैं। एक्चुअली फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है फोम कॉज करती है टू रिमूव द सेल्स फ्रॉम द मीडिया एंड देयर ऑटोलाइसिस, thus releasing more microbial foam producing protein, hence aggravate the problem. Foam will reduce the working volume in the fermentation vessels and decrease the rate of heat transfer and the deposit cell to the top of the fermentator. क्या होता है कि जब फोम जनरेट होता है तो वो माइक्रोब्स को अपने साथ में ऊपर लेके आ जाता है, तो नीचे जो फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है। जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल या एंजाइम मॉलिक्यूल भी फोम के साथ में ऊपर आ जाते हैं, तो कांटेक्ट जो होता है माइक्रो एंजाइम्स का न्यूट्रिएंट के साथ में वो प्रॉपरली नहीं हो पा जाता, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए हम एंटी फोमिंग एजेंट या सर्फेक्टेंट जिनको बोलते हैं, हम उनको यूज करते हैं टू रिड्यूस द फोम फॉर्मेशन। कॉमनली यूज्ड एंटी फोमिंग एजेंट्स आर द स्टेराइल एल्कोहल, कॉटन सीड ऑयल, लिंसीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल और सोयाबीन ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, सिलिकॉन्स एंड सल्फोनेट यूज किया जाता है। इसके अलावा कल्चरल मीडियम को ग्रो करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है, यानी प्रॉपर एयर एरेशन हमें देना पड़ता है। और ये एरेशन जो है इधर इन द फॉर्म ऑफ पासिंग द एयर बाय नोजल हम दे सकते हैं या फिल्टर मीडियम के थ्रू दे सकते हैं। और ये जो है एक प्रॉपर अमाउंट में ही एयर पास की जाती है फॉर द एरोबिक बैक्टीरिया, और एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए इस तरीके की एरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्टीम इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि स्टीम इज यूज टू स्टरलाइज फर्मेंटर एंड अदर इक्विपमेंट एंड टू कंट्रोल द टेम्परेचर। कंटिन्यूसली ड्राई स्टीम सप्लाई इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड टू केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द कंडेंसेशन। तो हम जब भी हम फर्मेंटेशन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें प्रॉपरली स्टीम दें ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके हम। एक और चीज़ है फर्मेंटेशन वेसल। फर्मेंटेशन वेसल लेबोरेटरी ग्रेड पे हम नॉर्मली शेकर फ्लास्क यूज कर सकते हैं या बॉटल यूज करते हैं, लेकिन हम लार्ज स्केल पे हम ग्लास या स्टेनलेस स्टील का फर्मेंटर यूज करते हैं। ये वेसल्स जो होता है इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको सबको पता है दैट इज शुड बी चीप, इस ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए, शुड बी नॉट ए कंटामिनेटेड द प्रोडक्ट, नॉट टू बी पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस जो भी हो रही है, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो हो रही है वो। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल, और ये शुड बी स्टेराइल, प्रॉपरली इसको ऑपरेट कर सकें हम, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। द फर्मेंटेटर रोबस्ट एंड रीयूजेबल, ऐसा नहीं कि एक बार यूज करो उसको फेंक दो। एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज हम इसमें प्रॉपरली मॉनिटरिंग कर सके, ऐसा फर्मेंटेटर हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि जो भी प्रोसेस हो रही है हम उसको देख सकें, हम सैंपल को उसमें से निकाल सकें, है ना, और लीक प्रूफ होना चाहिए। तो ऐसे ही सैंपल, ऐसे फर्मेंटेटर वेसल को यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। ये शेकर फ्लास्क टाइप भी हो सकता है, शेकर फ्लास्क या स्टीयर्ड टैंक फर्मेंटेटर भी हो सकता है। हम बात करें शेकर फ्लास्क की तो एक तरीके का कोनिकल डिफरेंट साइज के फ्लास्क होते हैं, डिफरेंट शेप के में भी, राउंड टाइप के या फ्लैट बॉटम टाइप के भी शेकर फ्लास्क हो सकते हैं, और प्रॉपरली बफल्ड होते हैं या अनबफल्ड होते हैं, या अर्लिन फ्लास्क को भी यूज़ किया जाता है, या फ्लाइंग सोसर को भी यूज़ किया जाता है हम इसके लिए, फर्मेंटेशन वेसल्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके के शेकर फ्लास्क जो होते हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली ग्रोथ कराने में मदद करते हैं। दे आर नॉन रिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, चीप होते हैं, आसानी से हम इनको रोटेट कर सकते हैं, यदि हम रोटेटरी टाइप के मोशन के थ्रू माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करा रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लोजिंग इनलेट एंड आउटलेट प्रोसेस भी होती है, इसमें हम प्रॉपरली कॉटन वूल्स या पॉलीयूरेथिलीन फॉर्म या ग्लास या सिंथेटिक प्लग से हम इसको बंद कर सकते हैं। और ये फ्लास्क जो हैं वो भी थॉम्सन बॉटल की तरह, थॉम्सन बॉटल को भी एज ए शेकर फ्लास्क की तरह यूज़ किया जाता है नॉर्मली फर्मेंटेशन वेसल के लिए। कुछ होते हैं स्टीयर टैंक टाइप ऑफ फर्मेंटेटर, और ये जो होते हैं नॉर्मली फर्मेंटेटर टाइप के होते हैं, ये सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, और ये सिलेंड्रिकल वेसल्स में एक मोटर लगी रहती है ऊपर की तरफ जो कि एजिटेट करता है, स्टीयर करता है कंटेंट को। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आसानी से यूज़ कर सकते हैं, रिलायबल है और रोबस्ट है ना,
और इसके अलावा मैं आपको इसका चाहे तो एक वो भी दिखा सकता हूँ, पिक्चर भी दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आपका ये इस तरीके का एजिटेटर टाइप ऑफ फर्मेंटेटर होता है, जिसमें आप देखेंगे एक सिलेंड्रिकल शेप वेसल्स होता है, इसमें मोटर ड्रिवन साफ्ट लगी हुई रहती है और इस साफ्ट के ऊपर जो है वो डिफरेंट स्टिरर लगे रहते हैं। इसमें जो आउटर कवरेज होती है दैट इज़ अ थर्मोमीटर जैकेट रहती है, स्टीम जैकेट, जो कि टेम्परेचर एयर ड्राई स्टीम को यहाँ से पास किया जाता है और इसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इस टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए इसमें थर्मामीटर लगाया जाता है। ये इसमें नाइट्रोजन इनलेट एंड नाइट्रोजन आउटलेट भी प्रेजेंट रहता है, जिसके थ्रू हम नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं और इनोकुलम के लिए प्रॉपर अटैचमेंट होता है। और जो प्रोडक्ट होता है दैट प्रोडक्ट भी आइसोलेटेड रिमूव फ्रॉम दिस, नीचे जो लगा हुआ रहता है ट्यूब लगी रहती है जिसके थ्रू हम ये आपको अलग कर लेते हैं। तो ये देखा आपने किस तरीके से एजिटेटर स्टीयर टैंक फर्मेंटेटर यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरी में स्टीयर टैंक फर्मेंटेटर बोरोसिलिकेट ग्लास या स्टेनलेस ग्लास का बना हुआ रहता है, जो कि प्रॉपरली लीड रहता है, मतलब बंद किया हुआ रहता है। इसका जो वॉल्यूम होता है 1 से 100 लीटर कैपेसिटी का होता है और इसमें कुछ पिन होल्स भी रहते हैं ताकि हम सैंपल को आइसोलेट कर सकें। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें किसी तरीके का ज्वाइंट ना हो ताकि माइक्रोब्स उसमें रह जाएं, प्रॉपरली स्टेराइल नहीं हो पाएँ और सारी चीज़ें। किसी भी फर्मेंटेटर के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फर्मेंटेटर वेसल में एडिशनल इक्विपमेंट क्या क्या लगे रहते हैं और फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेटर पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप तैयार रहिएगा, हम कंटिन्यू करेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस को।